of our Charanjit Singh Gill was a student of AMAS for online 30 batch. In 30 batch, it was lucky that we could do some part of it offline also last few days, which he attended to. And he has gone for his SSB to AFSB. And which AFSB, Charanjit? So Mysore, 2 FSB Mysore, Mysore. 2 FSB Mysore. And he was successful from there and he's made us proud. Right. So I welcome Charanjit. He was sitting like this about, I think, 1 month back, 1.5 month back. Yes, sir. And I now invite him to discuss. Basically, tell me how did you prepare, and then how was your performance? Any memories you have of SSB, etc. Should I start, sir? Yeah, Sir, please start. sir, firstly, as per prep, sir, मुझे एमास ने सब कुछ बता दिया सर वहाँ पे starting from my homework. When I came to एमास, I was knowing nothing, sir. बिल्कुल एकदम zero, sir. जब मैं एमास में आया and you told me that you have to do homework, sitting hour was from morning 8 to 5. First day was very hectic, sir, for me. I'm usually a guy who's more active in outside activities. Coming here, sitting here for more than 12 hours, it's just like a very hectic day, hectic thing for me, sir. But it helped me a lot, sir. Yeah, sir, your homework parts, sir, your data diary, your stories, sir, your psych helped me a lot, sir. In the what I'm today, sir, what I'm sitting right now, I'm sitting in front of you just because of you, sir. The AMAS, sir. Without AMAS, I was nothing. So coming to This was your first attempt, am I right? yes, sir. It was my The first first attempt, sir. attempt. Okay. So Yes, sir. just give a little introduction to the class. Where all did you study and all that before this, and how did you choose this as a career? Then we'll come to SSB. As for my studies, sir, I'm APS and KV student. And after that, I did my graduation in MM College, Jammu University. And I got 70% there. Very nice. From my childhood, so my father's in the army, DSC. So he's going in different areas, armed forces. So I was keen joining armed forces by my smaller age. And then in my college, I adopted NCC. That made a boost in my career that I wanted to do something armed forces. So I choose this. And as for Emma, sir, as I was scrolling down, I was keen on Instagram. I was scrolling on Instagram and I got to know about your page. You were giving a lot of recommendations in ACC. And on that day, I thought, एमास ही जाना है और कहीं जाना ही नहीं है. So it was very lucky for me. मैं एमास गया. So ये मेरा prep था. And coming to my SSB, sir, starting 2 FSB Mysore, 630 was my reporting. Total 183 reported. And out of 183, 61 got screened in. And I was the one. My chest number was 31 and I got screened in. In my GD, in my group, 5 of us got recommended in first part. My first day of screening was pretty easy, sir. पहले मैं OR दिया गया. It was 74. It was 75. To be true, sir, 74. I couldn't do my best. Time was very less. In 75, I gave my best. I did all 40. Yeah. And coming to the story part, एक story दिखाई गई. वहाँ पे एक लड़का था. 2 girls were sitting beside him. एक लड़का खड़ा था और एक लड़का बैठा हुआ था. Most of them wrote down कि ये college student है, यहाँ एक teacher है, they are teaching, and they made their age is around 35. I was knowing कि भाई मैंने age कम रखनी है इसकी और उसका मैंने बनाना. तो on the first day मैंने आपने story भेजी थी, मैंने cottage industry पे story लिखी थी, तो मैंने वही story वहाँ पे लगा दी. You gave me the thumbs up on the story. मैं सर ने thumbs up दिया था. Okay. ये जो ग्रुप में किया था प्रैक्टिस, ग्रुप वाली प्रैक्टिस की बात कर रहा है. अच्छा, फैमिली ग्रुप में. ओके. आपने thumbs up दिया था स्टोरी को, तो I don't know story, तो वो मेरी स्टोरी वहाँ पे चल गई. और I was the only one who's having that psych. सबकी वो नॉर्मल स्टोरी घूम रही थी स्कूल पे, फैमिली पे, तो मैंने उस पे दी थी कॉटेज इंडस्ट्री पे. जब हमारी जीडी स्टार्ट हुई सर, वी वर 30. तो जीडी के जो जीडी था वो डिस्कशन बड़ी थी. तो जब टेस्ट नंबर 27 स्टार्टेड, 28, 29, I was 31. तो चार ने बोल लिया व्हेन आई माय टर्न केम, मैंने अपनी वॉइस को मॉड्यूल कर दिया. उसमें मैंने इतने जोर से बोला, जो मेरे साइड में बैठा हुआ था वो जस्ट लाइक हिटिंग लाइक दिस. जैसे मैंने बोला ऐसे टर्न हो गया. तो ये क्या हो गया इसको. उसके बाद मैंने अपनी रेशन दे दी. शायद दे गिव मी ऑल टाइम. बाकी बच्चों को टाइम नहीं दे रहे थे, बट माय स्टोरी वाज डिफरेंट. सो दे गिव मी द फुल टाइम कि हाँ तुम अपनी स्टोरी कंप्लीट करो. मैंने स्टोरी कंप्लीट की, सबने स्टोरी कंप्लीट की. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट
उन्होंने बीच में ही छोड़ दी थी, दे वर नॉट नोइंग, क्योंकि हमारी पीपीटी जैसे खत्म हुई वैसे हमें डिस्कशन में बिठा दिया गया था। Okay. उनकी स्टोरी खत्म नहीं हो पाई। और इन जीडी यू टोल्ड मी दैट इनिशिएट करना है, मैंने इनिशिएट ऐसे किया सर, आई हैव लिसन्ड योर स्टोरी एंड आई कम टू अ कंक्लूजन दैट द जेंडर इज बिटवीन, द जेंडर इज मेल एंड फीमेल एंड द कैरेक्टर इज 5 and the age is between 20 to 25. Now let discuss the theme of it or action. तो सबने मेरी स्टोरी नॉमिनेट कर दी, सबको मेरी स्टोरी अच्छी लगी। गुड स्टोरी ट्रैप में फंस गया तू। नहीं सर, मैंने नहीं दिया अपने आपको सर, निकाल मैंने लिया। गुड। ऐसे बोला मैंने सर, नो नो नो, जस्ट नंबर 35 has given a great story. एग्जैक्टली, गुड। मैंने उसको फंसा दिया सर वहां पे। सर ही वाज वेरी हैप्पी, जैसे मैं बोल रहा था आई वाज इन्फ्लुएंसिंग द ग्रुप, वो ऐसे बैठा हुआ था, खुश हो गया सर वो बिल्कुल कि मेरी स्टोरी हो गई नॉमिनेट। उसके बाद मैंने थोड़े पॉइंट दिए अपने, मैंने 2-4 पॉइंट दिए, देन आई वाज नोइंग कि मैं स्क्रीन हूं यहाँ पे, क्योंकि आई वाज इन्फ्लुएंसिंग द ग्रुप, आई वाज मेंटेनिंग द डेकोरम। मैंने फिश मार्केट बनने भी नहीं दी वहां पे। If there is chance I was finding कि अब यहाँ पे फिश मार्केट बनने वाली है, I was stopping them। ठीक है, let's just number 35 speak, मैं से बोल रहा था। उसके बाद मैं शांत हो गया, I went down like this, मुझे पता था मैं स्क्रीन हूँ, बट उन्होंने मुझे नॉमिनेट कर दिया सर। अच्छा सर my love was with me, जो एसेसर थे वहां पे, उन्होंने बोला ठीक है, I have listened to your story, I have got the story, just tell me the theme। तो सर मैंने 35 को नॉमिनेट किया था, so I was knowing that मैंने थीम बोल दी वहां पे। गुड। जस्ट ठीक है, we listen to your story and we listen to your theme, you can proceed। So that was my screen part। उसके बाद मेरा 1 घंटे में आ गया और मैं स्क्रीनिंग हुआ। और ऑन द सेम डे हमारा साइक था, तो हमें हमारे आदित्य बुद्धराजन सर ने बोला था कि साइक के टाइम पे तुमने रेस्ट लेनी है, you have to take rest। मैं जैसे ही मुझे रूम अलॉट हुआ, I took 2 hour nap। मुझे पता मेरा 6 पे वो है साइक है, तो I have to take rest। 2 hour मैंने नैप लिया, मैं चला गया वहां पे। तो द स्टोरी जो आपने प्रैक्टिस कराई है ना, इट वाज टोटली सेम सर। जो लास्ट डे मैंने तुम्हें बता दिखाई थी, एक सेट 2 सेट दिखाए थे लास्ट डे। नहीं सर, लास्ट डे मैंने ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो मैं ट्रैवलिंग कर रहा था। अच्छा, ओके। तो सर जो पहले थी ना, दे वर टोटली सेम सर, जो मैंने प्रैक्टिस की थी सर। रेलवे की थी, एक लड़का ऐसे हाथ करके बैठा हुआ आगे, ऊपर एक भाई है उसका, तो आई वाज नोइंग कि यहाँ एक स्टोरी बन सकती है। आर्मी की थी, एक लड़का ऐसे करके बैठा हुआ है, तो लड़के सोच रहे हैं नेगेटिव है, वो काउंटर कर रहा है कुछ। तो एक स्टोरी, एक एग्जांपल है, आई जस्ट वांट टू गिव यू, जो मेरे दोस्त ने मैंने देखी थी, जो अभी मेक इट नहीं कर पाया, पता नहीं क्या हुआ। एक लड़का लेटा हुआ था, फेंटेड था। तो मेरा प्रोफेशन ये था कि मैंने मेडिकल प्रोफेशन बना दिया उसको। तो वो लेटा हुआ फेंटेड, आई नो ही इज फेंटेड। मुझे पता था कि मैं डॉक्टर प्रोफेशन ही दिखाना है वहां पे, मैंने मेडिकल प्रोफेशन दिखा दिया। एक लड़के ने क्या किया है, बीए का स्टूडेंट है, लड़का लेटा हुआ, उसकी टांगे उठा रहा है स्टोरी में, कि ब्लड फ्लो उसके सर पे जाए। तो वो थोड़ी ऐसे साइड भी आए थे वहां पे बच्चे सर। वैट जैसे आपने मुझे बताया था, ये देखना, यही फोटो की बात कर रहा है तू? ये सर, ये फोटो भी आई थी वहां पे, ये फोटो आई थी वहां पे। ओके सर, वैट आया। सो वैट सर, इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट ऑल वर्ड्स एट वन सेंस। तो मैंने 50 वर्ड लिखे, 10 वर्ड मैंने छोड़ दिए, बट मैंने नाम लिख लिया था उनका। मैंने वर्ड लिख लिए थे, पूरे लिख लिए थे। फिर जैसे एसआरटी आई, तो मैंने कहा था, मुझे पता था वैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एसआरटी। राइट। मैंने एसआरटी को मैंने बाद में किया, बट आई रोट डाउन ऑल द वर्ड्स। वो अच्छे लिखे सर मैंने बिल्कुल। अच्छा। एसआरटी, फिर जब एसआरटी मैंने स्टार्ट किया, आई कंप्लीटेड एसआरटी 42। 42 is good enough. Anything beyond 40 is okay. If you write good responses, 40 भी ठीक है। Good। अच्छा, फिर 42 एसआरटी लिख दी सर वहां पे। चलो, very nice। और एसआरटी मेरी अच्छी थी सर, आई वाज ओवरपावरिंग एवरीवन। ग्रुप बन रहा था, दे वर थिंकिंग सर ग्रुप कोई बोलता है 11 का बनता है, आई वाज थिंकिंग द ग्रुप इज ऑफ 3 पीपल, so you can write the एसआरटी in that way। ठीक है। उसके बाद मेरी एसडी आई, तो एसडी वाज प्रीटी सर गुड। ऑन एग्जैक्ट द सेम पॉइंट आई रोट डाउन माय एसडी, मैंने उसी समय लिखी थी। इट्स नॉट लाइक मैं रट के गया था, कुछ लिख के गया था, क्योंकि मुझे पता है इन माय इंटरव्यू दे विल आस्क मी द सेम क्वेश्चंस। तो मैंने एसआरटी ऑन स्पॉट बनाई, इट्स अ प्रेशर टेस्ट, तो मैंने प्रेशर में ही अपनी एसडी बना दी थी। ठीक है। तो जब मेरा साइक खत्म हुआ सर, आई वाज डैम श्योर कि मेरा साइक मेरे लड़ जाएगा, और कोई लड़े ना लड़े, मेरा साइक मेरे लड़ जाएगा। साइक वो ऐसे सर। सर इन जीटीओ, नेक्स्ट डे वाज माय जीटीओ। राइट। जीटीओ में मैंने अपने ग्रुप को पहले बता दिया था, कोई कोचिंग लेके नहीं आया था, और मैंने किसी को बोला नहीं मैं कोचिंग लेके आया हूँ। सर आई एम मॉड्यूलिंग माय वर्ड्स, मैंने कहा आई हैव टेकन गाइडेंस फ्रॉम एक्स जीटीओ कर्नल मोहिंद्र पाल।
और किसी को मैं पता नहीं होगा। कोचिंग लेके आया। जब वो मेरा वो देख रहे थे, मेरा जो मैं उसके जो आपने दिया था स्टडी मटेरियल दिया था एमास का, कहते ये कहाँ से है, मैं दोस्त का मार के लेके आया हूँ। मैंने बताया नहीं सर मैं कोचिंग लेके आया हूँ। ठीक है, ओके। फिर मैंने बताया कि जीटीओ इज अ टास्क, हमें ग्रुप टास्क दिखाना है, वी डोंट हैव टू शो द इंडिविजुअल सेंस। सब मेरी बात मान गए बिकॉज़ आई वाज द इन्फ्लुएंस इन दैट। मेन जो बंदा होता है ना, मैं अपने ग्रुप में वही था। मेरी बात माने, जैसे हमारी जीडी स्टार्ट हुई, आई टोल्ड देम कि भाई एसएसआर जो मर्जी बोले, यू हैव टू कोऑपरेट इन ग्रुप। तो मैंने अभी हमारा इनको अभी अभी थोड़ी देर पहले ही इनको बताया कि कैसे एक दूसरे से आपने मिलजुल के रहना है वहां पे। मैं भी वही बताने वाला हूँ सर इनको, अभी हाँ बहुत मैं बता। हाँ, मजा तो बता तू। हाँ। जैसे ही मेरा जीडी स्टार्ट हुआ, मैंने उनको पहले बता रखा था कि जो मर्जी हो जाए, ऐसे ऐसे तुम्हें जो मर्जी बोले, यू हैव टू कोऑपरेट इन अ ग्रुप, से ग्रुप टास्क। तो मेरा जस्ट नंबर 11 आई वाज द फर्स्ट वन। मेरे से स्टार्ट हुई जस्ट नंबर 12, जस्ट नंबर 13, जस्ट नंबर 14 स्टार्टेड। जस्ट नंबर 14 पहुंचा ना, तो जीटीओ बोलता है यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, इफ यू आर डूइंग लाइक दिस आई विल नॉट रिकमेंड यू इन जीटीओ। तो मैंने इनको आंखें दिखा दी, मैं क्या कुछ नहीं होता, बोलने दे बोलने दे। तो हमारा जीडी बड़ा अच्छा चला। 2 पॉइंट मिले थे, कोविड में हम क्या ले सकते हैं, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल सेंस। और सेकंड हमारा जीडी था कि मिडिल ईस्ट में अनरेस्ट क्यों है, द रिसोर्सेज, द फंडामेंटलिस्ट थिंकिंग एंड द लोकेशन। तो मैंने रिसोर्सेज में भी बोला और मैंने कोविड में सेल्फ डिसिप्लिन में बोला। तो मेरे को वो बांध रहे थे, जैसे मैं बोल रहा हूँ वो लीड मेरी ही पकड़ रहे थे सर। अच्छा। जैसे मैं बोल रहा हूँ वो मेरी लीड पे ही बोल रहे थे, वो सबकी लीड पकड़ ही नहीं रहे थे। जीपीआई सर, जीपीआई सर, जीपी में एज यू टोल्ड सर, आपने बहुत अच्छा बताया। जीपी में किसी ने वो नहीं लिखा, ऑर्गेनाइज वे में नहीं लिखा, दे वर राइटिंग इन पैराग्राफ। आई वाज द वन हु रोट डाउन अ प्रेफरेंस इन ऑर्गेनाइज्ड वे, प्रॉब्लम, रिसोर्सेज एंड देन सॉल्यूशन। और मैंने अपने ग्रुप को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया था। और डिस्टेंस मैंने टाइम बता दिया था विद अंडरलाइन, जो आपने बताया था। और फिर जीडीयू यूज की सर, वहां पे सीआरपीएफ कैंप है, वहां पे इलाहाबाद बैंक में सिक्योरिटी गार्ड, आई वाज नोइंग कि इलाहाबाद बैंक अगर लूटने जा रहा है तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड होगा। सीआरपीएफ कैंप है। तो एक हमारी प्रॉब्लम्स क्या थी, रेलवे ब्रिज पे एक बॉम्ब लगा है, एक जो ड्राइवर है एक्सीडेंट हुआ उसका, वो सीवियर, उसका हेड इंजर्ड है। बस वो तो थर्ड प्रायोरिटी वन प्रॉब्लम, हो जाएगा। हाँ वो प्रायोरिटी 1 होगा। तो थर्ड प्रॉब्लम थी कि इलाहाबाद बैंक लूटने वाला है। और फोर्थ थी कुत्ता डिच में गिरा हुआ है। सर यू वोंट बिलीव, बच्चे कुत्ते को बचा रहे हैं। ओह माय गॉड। मैं उनको बोल रहा था डॉग क्यों लवर्स बचा बहुत रहे है इस देश में, डॉग लवर्स हैं भी। अच्छा, फिर? डॉग बस थे, मैं यहाँ पे कुत्ता तुम्हें ले जाएगा भाई, कुत्ते को मत बचाओ, ओह माय ऐसे कह रहे थे। गॉड। फिर? मैंने बता दिया कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है, आई स्टार्टेड माय जीपी एज इनिशिएट किया मैंने। फिर मैंने अपना जितने पॉइंट बताने थे मैंने बता दिया। आवाज नहीं कि मैंने पॉइंट दे दिए हैं, नाउ अभी थोड़ा शांत रहते हैं। चेस्ट नंबर 14 थोड़ा ज्यादा बोल रहा था। तो जब नॉमिनेशन की बारी आई ना, तो आई नो कि भाई बहुत गदर हुआ यहाँ पे जीडी में, इन्होंने कुछ समझने नहीं दिया मेरे को। तो मैं तो नॉमिनेट नहीं करूंगा अपने आप को इस समय, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी बोल दूंगा वहां पे जीपी की। मैंने चेस्ट नंबर 14 को नॉमिनेट कर दिया सर, तू जा। तो वहां जाके वो बंदे ने अपनी बोल दी, अपनी बोल दी। सर वो घुमाया जा रहा है सर को, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन में नहीं आ रहा है, वो घुमाया जा रहा है, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे। तो जीडीओ हाथ पकड़ के बैठ गया, कहता आंसर दे। अच्छा, तो फिर? हमारी जीपी खत्म हुई सर, तो सर ने, जीडीओ सर ने कहा था कि एनीथिंग फर्दर यू वांट टू ऐड। मैंने बोल दिया नहीं करना है सर, एवरीथिंग इज डन, आवर लीडर हैज डन एवरीथिंग। बच्चों जो नए थे सर, फ्रेशर थे, वो फ्रेशर, उनको पता नहीं था सर ट्रिक। उन्होंने बोल दिया सर यहाँ पे ये ऐड करना है, यहाँ पे ये ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है, जरूरत ही नहीं है। हाँ, ओके कुछ नहीं बोलना यहाँ पे। ओके, तो फिर? फिर मैं बाहर गया, तो हमारी पीजीटी हुई, तो वहां पे स्नेक रेस नहीं है अभी एयरफोर्स में। हाँ, कई बार नहीं, या तो स्नेक रेस होती है या आईओ होते हैं, उनमें से दोनों नहीं करते वो, ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो स्नेक रेस हमारे में नहीं थी, हमारी पीजीटी चलो, हुई। पीजीटी में। तो अच्छा। पीजीटी में सर ऐसा क्या होता है, मेरे ग्रुप में था, मैंने इनको पहले इन्फ्लुएंस कर लिया था, तो मैं अजाइल हूँ, सॉरी मैं अजाइल भी हूँ, मैं थोड़ा छोटा भी हूँ, और मैं कहीं पे घुस जाता हूँ। अच्छा। मेरे को सबसे आगे रखा था, आई वॉज गेटिंग द आइडियाज। हाँ। जैसे आपने वीडियो बताया था, इट वॉज फैंटास्टिक सर, मुझे पूरे आइडिया आ रहे थे कि कहाँ से ब्रीजिंग होनी है, कहाँ से नहीं होनी है, कहाँ पे गलत कर रहे हैं। आई वॉज इन द लीड, जो अंदर वो सिकंदर, जो बाहर वो बंदर, वो सिस्टम था। तो मैं पहले अंदर पहुंच गया, बट व्हाट आई डिड सर, मेरी थर्ड पीजीटी में आई वाज नॉट हैविंग एनी आइडियाज। तो मैंने क्या किया,
चेस्ट नंबर 17 वाज हैविंग सम आइडियाज, तो मैंने उसको स्वैप कर लिया। मैं ठीक है चेस्ट नंबर 17 यू हैविंग आइडियाज, यू कम स्वैप विद मी। तो मैं पीजीटी 3 में पीछे चला गया इंटेंशनली टू शो माय ग्रुप प्रोग्रेस, कि मैं ग्रुप में भी काम कर सकता हूँ, कि नहीं खुद आगे जा रहा हूँ। उसके बाद जब मेरा पीजीटी खत्म हुआ सर, इन बिटवीन मैंने बड़े सारे स्वैप किए, जो मेरे ग्रुप में 2 हैवी बिल्ड थे, वो कवर नहीं कर पा रहे थे। तो आई वाज टेलिंग देम कि ठीक है यू स्वैप विद मी, आई विल रीडू द पीजीटी टेस्ट। मैं वहां पे स्वैप कर रहा था। So basically you are showing good team spirit, दूसरों को भी मौका दे रहा था, खुद भी ले, सबको ही मौका दे रहा था, मैं खुद भी ले रहा था। तो खुद तूने कितने आइडिया, how many idea could you implement in PGT total? Every PGT I gave my ideas, only one the PGT 3 I was not having any ideas. Okay, ठीक है। How was your HGT? Let's move to HGT. HGT sir, HGT में सर odd even में हमारे ग्रुप को डिवाइड किया। सारे मैंने आइडिया दिया फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, फॉरवर्ड मैन, रिकवरी मैन, सब मैंने आइडिया दिया। तो HGT was I was the handling, I was the one who is handling HGT. Same principles you kept in mind while giving the ideas what we had taught? Yes sir. We will not discuss the principles, we have to teach them. Right, so that came in handy, those principles. Yes sir. Okay. How was your command task? सर कमांड टास्क टेल यू, मेरे को जब कमांड टास्क आया वहां पे, तो कमांड टास्क में मेरे को 8 बार बुलाया गया था। My God. So much I was there. 8 बार मुझे बुलाया गया सर। 5th टाइम जीटीयू ने उनको बोल दिया व्हाई यू कॉलिंग चेस्ट नंबर 11 अगेन एंड अगेन। अच्छा। जब मेरा कमांड टास्क जब वो कमांड टास्क दे रहे थे, आई वाज बीइंग कॉल्ड, तो जीटीयू मेरे को टेस्ट कर रहा था सर। वो मुझे बोल रहा था ठीक है ओके कमांडर, नाउ यू हैव योर सबऑर्डिनेट, यू आर यूजिंग हिम फर्स्टली फिजिकली, नाउ यू कैन यूज हिम मेंटली। हाँ, they were getting stuck when they were getting stuck. Okay. हाँ, तो मुझे पता था यहाँ मेरा टेस्ट है, तो मैं आइडिया वहां लगा रहा था। When they are stuck, I was giving the ideas. यहाँ ये लगा, यहाँ पे ये लगा। जब मेरा कमांड टास्क आया सर, ये टुक हिम टू स्पेशल पोजीशन, मुझे कहीं और ही ले गया वो। अच्छा। मेरा सबसे लास्ट में बुलाया गया मेरे को, सबसे लास्ट में बुलाया, और मुझे हमेशा येलो कर रहा है, कभी ही वाज डूइंग येलो, इट इज रेड। मैं रोप से आइडिया लगा रहा हूँ, उसने मेरी रोप ले ली। मैं बल्ली से आइडिया लगा रहा हूँ, उसने मेरी बल्ली ले ली। मुझे परेशान कर दिया सर, बट स्टिल आई गिव 6 आइडियाज। और मेरा सर जो लेक्चर था, आई स्पोक ऑन वैक्सीन, आई स्टार्टेड विद द हिस्ट्री, उसके बाद मैं करंट में आया, एज में बताया कि कैसे कैसे लगती है, डिसीज कौन सी है, देन आई कन्वर्टेड टू कोविड, जो ड्राइव्स चल रही हैं। तो सर मेरा लेक्चर बहुत अच्छा गया। एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कितनी हुई? इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स सर आउट ऑफ 10 आई डिड 8, बट मैंने स्टार्ट किया टाइगर लीप से। तो जब टाइगर लीप पे चढ़ा ना, फॉर अ व्हाइल सर आई गॉट अफ्रेड। बहुत दूर था सर वो पकड़ने वाला, बहुत दूर था। बट एज यू टोल्ड मी सर कि एक आपकी बैच में जो था, एक बच्चा चढ़ के वापस आ गया था। तो मैं अगर चढ़ के वापस आता तो दैट शोज अ नेगेटिव थिंग। मुझे कूदना ही था वहां से, मैं कूद गया, और आई वाज हैविंग द स्ट्रेंथ इन माय आर्म्स, और मैंने पकड़ लिया। आई केम डाउन, मैंने सारा किया, पर बर्मा ब्रिज मैंने लास्ट में किया। एज यू टोल्ड, बर्मा ब्रिज का टाइम लगता है, लास्ट पे चलो, राइट। बर्मा ब्रिज का टाइम किया, मैंने लास्ट में किया। तो फिर फुल ओवरऑल जीटीओ तेरा बहुत अच्छा हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू। हाउ वाज द इंटरव्यू? द इंटरव्यू सर, ही ग्रिल्ड मी ऑन माय पीआईक्यू एंड माय सीआईक्यू। ओके। थिंगल सर करंट अफेयर उसने मुझे पूछे ही नहीं। ही आस्क्ड मी अबाउट माय जम्मू कश्मीर स्टेट, आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो कहता 370 के बाद तुमने क्या चेंजेस देखे और अभी क्या चल रहा है। So this is for you, this actually is awareness. So current affair oblique awareness. So he can probe you anywhere, and he must have asked you Air Force question. That also forms part of the complete game of current affairs. Means GK, GA, awareness, everything put together. Right. So Jammu Kashmir 370. ये भी तो सब वही हो गया indirectly. Okay. What else? सर जम्मू कश्मीर का पूछा, कहता अभी और बता जम्मू कश्मीर में। सर आई टोल्ड हिम कि डिलिमिटेशन चल रही है, सीट्स की वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। उसने बताया। फिर मेरा उसने फैमिली के बारे में पूछा, मेरी ग्रेजुएशन के बारे में पूछा, मेरा फ्रेंड्स के बारे में पूछा। कहता टेल मी योर स्ट्रेंथ्स। आई टोल्ड हिम आई एम वेरी सोशल पर्सन एंड आई एम वेरी हेल्पफुल पर्सन। कहता व्हाट हेल्प यू डिड टू योर फ्रेंड्स। सर मुझे वहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने फ्रेंड की हेल्प की थी उसका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम लिखने के लिए, उसका मेन था। अब मैं वहां फंस जाता। व्हाट आई डिड सर, मैंने उसकी मम्मा का ब्लड प्रेशर कम कर दिया, ब्लड का जो लेवल था कम कर दिया। मैं उसको बोला उसकी मम्मा का ब्लड लेवल कम हो गया था, माइन इज ओ पॉजिटिव, उसकी मम्मा का भी ओ पॉजिटिव है, सो आई गिव माय ब्लड एट नाइट 10 PM। सर वो वहां पे खुश हो गया। आयो ओके। मैंने ऐसे किया था वहां पे सर। उसके बाद मेरा जो इंटरव्यू था बड़ा अच्छा चला, नॉर्मल चला। मैं आंसर दे रहा था, आई वाज गिविंग ऑन पॉइंट। ऐसा नहीं था कि मैं एक्स्ट्रा बोल रहा था। फिर उसने मुझे रैंक के बारे में पूछा कि इक्विवेलेंट रैंक्स कौन से होते हैं।
Then he asked about कि तुम क्या देखते हो इंटरनेट पे, कैसे करते हो. तो as you told me sir, gravitas, पलकी शर्मा उपाध्याय, that strike in my mind. Right. मैंने बोल मार दिया दिया. तूने वो? मार दिया वो? वो मैंने मार दिया सर वहां पे. तो कहता कोई एक आर्टिकल बता दियो, एक आर्टिकल बताओ उसका. मैंने वो बता दिया सर. उसका कोविड के बारे में उसने बताया था एक बार, मैंने देख के गया था इसका. कोविड के बारे में मैंने बता दिया, तो ही वाज नोइंग कि इसने देखा है. जब मेरा इंटरव्यू चला, एट लास्ट ही टोल्ड मी दैट हाँ, वी हैड अ डिस्कशन अबाउट 1.5 hour and we had a good discussion. Hope to see you in Air Force. Wow, that's very good ending. And tell me, did he ask you about aircrafts and all that Air Force के? No, What would you like to fly? So he asked me about Air Force के बारे में क्या जानते हो. मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया. Ended up at Air Force is the 4th largest Air Force in the world. अच्छा, वो एक बार में तूने 4-5 मिनट में ऑलरेडी बता दिया ना? हाँ, पूरा मैंने बता दिया. सारा डीआर सर का क्लास तूने वहां निचोड़ दिया पूरा सर. गुड, ठीक है. Now let's open up to the question. इतना इंटरेस्टिंग बताया चरणजीत ने, मेरे को भी सुन के हंसी भी आई है. Anybody want to ask anything to him? He is in front of you. I will not share his number, but you want to ask anything to him? Now you can ask. Anybody wants to ask anything? Nothing to ask. Sir has already explained everything so precisely, sir. Sachinder? Yeah, Sachinder wants to ask something. Bhaiya, what was about that thing? CPSS. CPSS मेरा I am ground duty. He's got admin branch. Okay. CPSS का मैं आपको तरीका बता दूंगा. Don't worry, I will tell you how to clear CPSS. And Abhilash, sir, I want to ask one more thing. आप पूछो. Bhaiya, how to start initiate that PPDT narration? Because Bhaiya, when we are speaking, then I had observed that while speaking, it becomes quite difficult to express because they are just saying, okay, move. See, first thing 2 lines after 2 lines just. First thing you have to keep in your mind, you don't have to get dejected. What candidate do is they get dejected. जब भी हम कोई बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो जब किसी की वॉइस मॉड्यूल होती है, वो हाई पिच होता है, तो हम डर जाते हो. What is saying? ऐसे मेरे ग्रुप में भी हुआ था. People got afraid कि मेरी वॉइस थोड़ी ज्यादा थी. In GD, what you have to do is start with like this. Okay, gentlemen, I have listened your stories. I have come to a conclusion that there are 4 characters. अपना ही बता देना. You can tell your own. And the age is between this to this. The mood is positive. Now let's discuss the theme. By that, you are showing that you have listened their stories, and now you're coming to the conclusion, like theme. This is the best part to start your GD. Okay, ऐसे भैया. नहीं, डरना नहीं है, वहां पे सीधे जाके बोल देना है. Okay, भैया. Thank you. Muskan, what's your question? Yes, can you please describe your PPT picture again and the theme you wrote there? Okay. The mine was a man is sitting on a chair, 2 girls beside him, and one boy standing and one boy sitting. जो आदमी की age is around 35, looking like 35, but the picture is hazy. You can perceive any age. कुछ वहाँ पे बोलेंगे नहीं. And my theme was cottage industries. यही था. Dheeraj, answer. Sir, yes. What was your lecture topics? Vaccine. Okay, Deepak, 58. Sir, can you explain anything asked in a conference? Conference, he asked me about, tell me your 2 qualities. When I entered, he told me, good morning, Charanjit, have a seat. मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोला वहां पे उन्होंने, कौन मुझे बात कर रहा है उससे. एक बार देखा, फिर मैंने देखा, मेरा प्रेसिडेंट के साइड में था. उसने बोला, tell me your 2 qualities you are proud of. I told him my socializing ability and my friends making ability. That is already I have shown in my GTO and my interview. तो वही बोलना जहाँ तुमने जो किया है. Don't say extra. Right. Okay. Who's next? Okay, Satyam, you have any question? Or you just raised your hand? Yes, sir. How to tackle rapid fire question, and sometimes interview officer they realize your previous decision was not true. So it types of question has been asked by IO. Mine was very simple. The sir has told you about all the CIQs. Just prepare on that. Just mug up everything in your CIQ. You will get to know your answers. If you ask about tell me about your graduation, you will start with your 10th, 12th, graduation. What was your subject? What teacher you like? What teacher you don't like? ऐसे वो question पूछेगा and you tell that. कुछ नहीं होगा. If you CIQ rapid fire is the CIQ only. थोड़ा सा तेज बोल देते हैं, एक लाइन में बोल देते हैं. That's it. Okay, Himanshi, what's your question? How did you prepare for your lecturate? What were the resources? Sir,
sir has given me everything about from starting from first class to till last class. I was preparing the lecturate. DRS sir helped me a lot. Sandy sir, especially the Sandy sir is a great advisor. वहां से तुम करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा यार. तुम्हें actually when you are in your lecturate, you will be getting your ideas. तुम्हें अपने आप तुम्हारे mind में ideas आएंगे. अब provided ये homework तो करें, homework तो करते नहीं है. सर मैंने किया था. हाँ मैंने किया था. अच्छा चलो ठीक है, करते रहो अभी homework. Okay, I think we are running short of time because IO sir has already joined. I would just like to take this opportunity to thank Charanjit to give his such a nice description of his SSB experience, and I'm sure all of you will pick up these small things which he has told. Go confidently, prepare hard, then go confidently, and I'm sure success will also touch your feet. If you are sincere in your efforts and you work hard, nothing can stop you from succeeding. With that, I end this interaction session with Charanjit, and thank you so much, Charanjit. I also laughed a lot after a serious this thing, though I'm in isolation due to COVID, but I had a good time listening to your narration. So thank you very much. Thank you. And Afsana, we have finished